were in India, we would always be told when during the Holy Communion that when you're taking the Holy Communion, make sure you forgive everybody before you take the Holy Communion. और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं इंडिया में था और जब मैं अपने चर्च जाया करता था तो पाक शराकत लेने से पहले हमें ये सिखाया जाता था कि जब आप किसी को माफ करते हैं फिर आप खुदा के इस बदन में शरीक हो सकते हैं. Else you will bring damnation into your life. नहीं तो आप जो है हमेशा की दोजख में जाएंगे. And after that, I started being less of a bitter person. और उसके बाद में थोड़ा कड़वाहट मेरे अंदर कम होती गई. I started being less angrier with और people around me in the world around me. ये उसके अंदर ही आपके. नहीं. I said before my 10 minutes start. अच्छा, आगे पहले 10 मिनट लेंगे. Okay. और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जिंदगी में उनके चेंजेस आने शुरू हो गए. I started being more patient and I'm a much happier person today because of following forgiveness from the past. और मैं आज बहुत एक खुशनसीब आदमी अपने आप को समझता हूँ जब से मैंने किसी को माफ करना शुरू किया क्योंकि माफी के बाद मेरी जिंदगी में तब्दीली आनी शुरू हो गई. Hallelujah. So whenever you take before you take your Holy Communion, please forgive because every day, every week we tend to be angry at people as well. So please, we have to follow forgiveness because one of the main reasons Jesus came was to also forgive the whole mankind. और जब भी आप इस पाक शराकत में हिस्सा लेते हैं होली कम्युनियन में उससे पहले आप एक दूसरे को माफ करना शुरू करें क्योंकि यही खुदावन का कलाम हमें सिखाता है और इसी को हमने अपनी जिंदगी में लेके चलना है. Now my 10 minutes starts. Nice. Yeah. Praise the Lord, church. Hallelujah. The second word that has been given to me is verily, verily I say unto you that you will be with me in paradise. और दूसरा जो कलमा है वो ये है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. मैं तो सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. And I have presented words before as well, one of the 7 words or one of the other words before. और मैंने बहुत सारे इससे पहले भी दूसरे कलमात को पेश किया है. But when I was reflecting on this particular word, और जब मैंने इस कलमे के ऊपर निगाह की और इसे देखा, the revelations that came to me when I was researching about it were also quite a lot. और मैंने जब इसे रिसर्च करना किया इसकी छानबीन करना शुरू की तो मुझे इसमें से बहुत सारा मवाद मिला. I feel this is a very, very, very blessed word for all of us as well. और आज मैं इसे समझता हूँ कि ये बहुत ही ताकतवर अल्फाज है खुदा यीशु मसीह के कोहे कलवरी के मकाम के ऊपर. And I would like to summarize this under 4 headings. और मैं इसे 4 चीजों में 4 बड़ी हेडिंग्स के अंदर इसे बताना चाहूंगा. One is the power of belief. और एक जो है कि आपकी जो है बिलीव आपका यकीन किस तरह पुख्ता होना चाहिए. Second is in terms of is it too late? I'll elaborate about this a little more. और हम दूसरी चीज इस पे नजर करेंगे कि क्या अभी और देर हो चुकी है या और देर होने वाली है. So third is Jesus did what he came into this world for. और यीशु जिस मकसद के लिए आया उसने वो काम पूरा किया है. And the fourth part of it is what will happen to us in later part of our lives or when we die. और ये है कि अगर हम अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में हैं या उसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है इस चीजों पे हम गौर करेंगे. So just to recreate very quickly the scene that happened at that point of time. और आज हम उसे दोबारा एक मंजर को दोबारा अपने नजरों के सामने लेके आएंगे. So here you have Jesus Christ who's been betrayed. और यहाँ पे यीशु मसीह जो के गैर कौमों के हवाले किया गया. And he has already been tried in the court. और उसे रात भर जो है कोर्ट में उसे पेश किया गया. He has been slapped on the cheek. और उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए. He has been spit upon. और उस पे थूका गया. The hair on his beard has been pulled. और उसकी दाढ़ी को नोचा गया. He has been ridiculed and humiliated. और उसे ठट्ठों में उड़ाया गया. He has been tortured in the most inhuman way. और उसे बहुत बुरी तरह से कोड़ों से मारा गया. And then he was made to wear the crown of thorns. और उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया. He was made to carry the heavy cross through the streets of Jerusalem. और यरूशलेम की सड़कों के ऊपर कंधे के ऊपर एक भारी सलीब को उठा के वो चलते गए. All the way to Golgotha. और उस गलगत्ता के मकाम पे पहुंचे. Where he is now hanging on the cross. He has been nailed to the cross. और वहां पे उसे सलीब पे लटकाया गया और उसके हाथों में कीलों को ठोका गया. Now, if I have to remind all of you about those days, how the judgment used to be. और अगर आप उस जमाने के हिसाब से अगर उस अदालत को देखें, the most this particular punishment was given to the most hardened and worst of the worst criminals in those days. और उस जमाने के अंदर ये जो सजा दी जाती थी वो उन लोगों को दी जाती थी जो बहुत ही सख्त किस्म के मुजरिम होते थे. And here you have Jesus along with 2 of the most hardened criminals on the cross. और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है 2 बदकारों के साथ लटकाए गए हैं. Now let us come to the power of belief.
और हम देखेंगे कि हमारा ईमान जो है, ईमान की कुव्वत क्या है। So you have one of the criminals on the cross. और यहाँ पे हम देखते हैं एक बदकार जो है सूली के मकाम पर है, He is telling Jesus, और वो यीशु को ये कह रहा है, please remember me when you enter into your kingdom. और वो कह रहा है कि तू मुझे याद करना जब तू अपनी बादशाहत में आए। So that is nothing but his belief in Jesus. और उसके मुंह के अंदर जो अल्फाज हैं वो यकीन है कि उसको यीशु के ऊपर कि यीशु ऐसा कर सकता है। And that belief brings about faith. और वो जो ईमान उसके अंदर से निकलता है और वो जो यकीन उसके अंदर से निकलता है वो उसके ईमान को जाहिर करता है। And that faith is leading to hope. और वो ईमान जो है उम्मीद के ऊपर आती है। And he has the hope that he will be saved, or he will when he is remembered in the kingdom, his sins are being forgiven. और उसे ये ईमान है, उसे ये यकीन है कि जब खुदावन यीशु अपनी बादशाही में आएगा मुझे याद करेगा तो मैं भी उसकी बादशाही में पहुंच जाऊंगा। And when you are about to be in the last moment of your life, और जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हा में है, the hope is a very powerful thing to carry. और उम्मीद जो है ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, Because he is now looking forward to something better in his afterlife. Probably. और उसे ये समझ आ गई कि मेरी उम्मीद जो है बाद की जिंदगी के लिए भी है। So hope is a very powerful thing, and for that it is very important that all of us also retain and hold on to the belief and faith that we have in Jesus Christ. और उम्मीद जो है वो हमें इस लायक कर देती है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखें, यकीन रखें कि वो हमारी जिंदगी में कसरत से काम कर सकता है। And this is the same belief that the criminal on the cross had in Jesus. और वही ईमान जो है वो बदकार का यीशु मसीह के ऊपर है। And his word was, remember me. He is not saying, take me with you. और वो ये नहीं कह रहे कि मुझे अपने साथ ले जा, मगर ये कह रहे हैं कि मुझे याद करना। His only hope is that at least Jesus will remember me when he is entering. और ये सिर्फ उसकी उम्मीद है कि अगर यीशु अपनी बादशाही में होगा, अगर वो मुझे याद भी कर लेगा तो बहुत है। So the power of belief is very powerful. और हमारा ईमान जो है, अगर हमारा यकीन पुख्ता है तो हमारा ईमान भी पुख्ता है। Now let us come to the second one in terms of is it too late? और इज इट टू लेट, यानी कि बहुत अभी देर नहीं हुई, बहुत देर नहीं हुई, हम इस पे ध्यान करेंगे। So I would like to again recreate the scene again of what happened there. और अभी हम दोबारा उसी मंजर को देखेंगे। So you have Jesus on the cross. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रॉस सूली के मकाम पर है। You have one criminal who is now saying, aren't you the Messiah? और यहाँ पे एक बदकार की हमने सुन ली, अब दूसरा बदकार ये कहता है क्या तू मसीह है? If you are the Messiah, why don't you save yourself and save us? अगर तू मसीहा है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। So he's again there also ridiculing Jesus. और वो भी एक तरह के ठट्ठा उड़ा रहा है यीशु के बारे में, humiliating him. और उसे जलील कर रहा है कि तू इतना बड़ा खुदा बन रहा है, ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है। You are not able to save yourself and you are out to save the world. और जो तू अपने आप को अगर तू बचा नहीं सकता तो दुनिया को किस तरह बचाएगा? That is when the second criminal says, और ये दूसरा बदकार कह रहा है, don't you fear God? He is telling the other criminal. और वो पहला जो बदकार है वो उसको कह रहा है क्या तू खुदा से डरता नहीं? He says, we are criminals और ये कहता है कि हम तो बदकार हैं and we deserve what we are going through. और हमें जो सजा मिल रही है हम उसके हकदार हैं। But there is no guile in the person who is dying on the cross in front of us. और वो शख्स ये जो हमारे साथ लटका है, इसके मुंह में तो कोई छल भी नहीं है, फिर भी ये हमारी तरह लटकाया गया है। And he says, Lord, और उसे कह रहे हैं क्या है? खुदावन, remember me when you enter into your और कह रहे हैं खुदावन तू मुझे याद करना जब तू अपनी बादशाही में आए। So let us break this down. What is happening here? You have one criminal who is ridiculing Jesus. और हम यहाँ पे इसको तोड़ेंगे और देखेंगे एक बदकार जो है यीशु को ठट्ठों में उड़ा रहा है। The second criminal is saying that we deserve what we are going through. और वो ये कह रहा है कि हम तो इस लायक हैं कि हमें ये सजा मिल रही है। That means he is confessing his sins in front of Jesus. और वो अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है यीशु मसीह के सामने। We have to look at it in the way that he is actually confessing his sins in front और of us. आज हम इस चीज का इकरार देखेंगे कि वाकई ही वो अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं कि हम इस लायक हैं। Then he says, Lord, और वो कह रहा है खुदावन, this is to Jesus. यीशु को कह रहा है, That means to say he is accepting Jesus as his Lord, his Savior. और वो उसे अपना नजात दहिंदा और अपना मसीहा कबूल कर रहा है। Which is a big thing because on one side he is confessing his sins. और एक जगह पे वो अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है। Next he is accepting Jesus. और दूसरी जगह पे यीशु को कबूल कर रहा है। And he is praying to him, remember me when you enter your kingdom. और वो ये बात कह रहा है कि तू मुझे याद करना जब तू अपनी बादशाहत में आए। So what happens? What does Jesus reply?
और यीशु की क्या वहां पे खुदावन ने क्या उसे जवाब दिया? Jesus is saying that you will, verily I say unto you, you will enter into the kingdom. और यीशु से कहता है मैं तुझे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। So Jesus is always prepared to give us more than what we expect. और यीशु उससे बढ़कर देने की कुदरत रखता है जो हम उससे मांगते हैं। What we ask, He will give us much more than whatever. और जब हम उससे मांगते हैं तो उससे बढ़कर हमें देने की कुदरत रखता है। That is what we all have to remember. और यही आज हमें याद रखने की जरूरत है। Because Jesus has the power to give anything beyond our means as well. और यीशु के पास वो कुदरत और ताकत है हमारी सोचों से बढ़कर देने की। And Jesus there is again taking him into the kingdom of his own kingdom, which means even we can go into that kingdom. और आज यीशु मसीह जब अपनी बादशाही में है तो आज हमें भी वो अपनी बादशाही में लेके जाने की कुदरत। Why do I say it is not too late? और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अभी देर नहीं हुई, बहुत देर नहीं हुई। Because even at the dying moment, उस मरने के वक्त पर भी he accepted Jesus. और उसने यीशु को कबूल कर लिया। He confessed his sins. और उसने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया। And he asked Jesus that he should be remembered in his kingdom. और उससे कहा कि जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे प्लीज याद रखना। So for us also, not only us, anyone in the world, it's never too late to accept Jesus. और अभी भी हमारी जिंदगी में देर नहीं हुई, हमें यीशु को कबूल कर लेना चाहिए। Even if you are on the dying moment of your life. और अगर आप आखिरी लम्हा में, अपने मरने के आखिरी लम्हा में भी क्यों ना हो, Irrespective of which religion, which country, wherever you are. और जहां कहीं भी आपको क्यों ना हो, किसी भी मुल्क से, किसी भी मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, On your dying bed, in that moment also. और आप अपने डाइंग बेड के ऊपर भी अपने खुदावन यीशु को याद कर सकते हैं। If you confess your sins and accept Jesus, you will have salvation. और जब आप अपने मुंह से इकरार करते हैं और उसे कबूल करते हैं तो आप निजात पा लेते हैं। Why? Because Jesus came to give salvation. और यीशु आया है ताकि आपको निजात दे। So it is never late. और वो अभी देर नहीं हुई आपकी जिंदगी So में। it is never late when it comes to accepting Jesus. और जब आप उसे कबूल करते हैं तो इसमें कभी भी देर नहीं होती। It is never late to confess your sins. और इसमें कभी भी देर नहीं होती कि आप अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं। Now I come to the third point where I said Jesus did what he came for. और यीशु, अब हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे जहां पे यीशु ये कहते हैं कि He did what he came for. और जो वो करने के लिए आए हैं वो करेंगे, That is to make sure that no soul is lost, ताकि कोई भी रूह जो है वो खोई ना जाए, no sheep of his is lost, कोई भेड़ खोई ना जाए, and salvation is given. और सबको निजात मिल जाए। Even at that last moment of that criminal, और वो बदकार की जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी हम देखते हैं, there also Jesus, you can imagine, he has already gone through all this torture and he has been ridiculed, he has been bleeding all night as he's और अगर आप यीशु की जिंदगी को देखें तो पूरी रात जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है, खून निकल रहा है और उन्हें खान तान किया जा रहा है। Probably is very, very tired also. और शायद वो बहुत थक चुके होंगे। But still, even in that last moment, और अगर आप देखेंगे अब उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हाओं में भी, there also he saw an opportunity to save a soul and give salvation. और फिर भी वो यहाँ पर भी लोगों को बचाने की सोच रहे हैं ताकि उन्हें निजात दी जाए। So this, there you see that this thief, this criminal also got salvation. और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो बदकार को आखिरी लम्हा में भी निजात मिल जाती है। Because he accepted Jesus and confessed his sin. और वो उसने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है और उसे निजात मिल गई है। So it is a very powerful thing that Jesus came for salvation, and there even on the cross he gave salvation to that particular criminal there. और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह अगर निजात के लिए है तो वो आखिरी लम्हा पे भी लोगों को निजात देने की कुदरत रखता है। And he is a God who is a living God. और वो जिंदा खुदा है। He was, is and will be forever. और वो जो था है और जो आने वाला है। And that means to say for us also, और आज हमारे लिए भी he is also looking out for us as the lost sheep. और आज वो हमें भी खोई हुई भेड़ों की तरह देखता है। He is looking out for how many sheep I can save. और वो आज भी देखता है कि कितनी भेड़ों को मैं बचा सकता हूँ। Who is it that I can give salvation? और आज वो कौन से लोग हैं जिन्हें मैं निजात दे सकता हूँ। So this is why it is important that we always look up to Jesus और यही बहुत जरूरी है कि हमें अपनी निगाहें हमेशा यीशु की तरफ लेके जानी चाहिए and hold on to our belief and faith. और हमें अपने ईमान को उसके ऊपर रखना चाहिए। I come to the fourth part, which is what will happen to us when we die. और मैं चौथे पार्ट के ऊपर आऊंगा कि मरने के बाद हमारे साथ क्या हो सकता है। Here I would like to read from John 6:40. और जब मैं यूहन्ना की इंजील उसका छठा बाब और उसकी 40वीं आयत को देखेंगे, And he says here, and this is Jesus' words. और ये यीशु के अल्फाज हैं।
And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। And one more is St. John 6:47. और हम उसकी 47वीं आयत को भी देखेंगे। Verily, verily, I say unto you, 47. यही, He that believeth on me has everlasting life. मैं तुमसे सच कहता हूं, जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसी की है। So for all of us, when we think of what will happen to us or what will happen to us when we die, और हम सब ये जानना चाहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। we don't have to worry about it. हमें उसकी जरूरत नहीं है उसके पीछे परेशान होने के लिए, Why? Because we have already accepted Jesus. क्योंकि यीशु ने हमें ऑलरेडी कबूल कर लिया है। Of course, the world around us, we also sin every day, और हम दुनिया में रहते हुए गुनाह हर रोज हमारी जिंदगी में हो जाते हैं, knowingly, unknowingly. और जाने अनजाने में। And that is why it is important that we confess our sins every day and seek forgiveness. और इसीलिए हमें जरूरी है कि हर रोज हम अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावंद से माफी मांगे, And hold on to our belief and faith in Jesus. और हम अपना ईमान यीशु के ऊपर रखें, And we will know that even on when our life comes to an end, और हमें ये जानना चाहिए और हमें ये समझ देना चाहिए कि जब हमारी जिंदगी का एहतिताम होगा, we will have the same words that Jesus repeating to us. और वही अल्फाज को हम अपनी जिंदगी में दोहरा सकते हैं, Where Jesus will again be telling us, I will say unto you, you will be with me in paradise. और वो ये कहता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। So it is applicable to all of us as well. और आज ये हमारे सारी जिंदगी, हम सब की जिंदगियों में लागू होता है। Only one promise we all have to have, आज हमें एक ही वादा करना है अपने आप से, that we all hold on to the belief and faith in Jesus. और आज हमें सिर्फ अपने यीशु मसीह पर ईमान रखने की That is जरूरत the है, only thing that is needed for us, और आज यही चीज है हमें करने की जरूरत है। and we can all definitely have everlasting life और आज मैं आपको कह सकता हूँ कि हम सब के पास हमेशा की जिंदगी because we है, all have our belief in Jesus. क्योंकि हम सब यीशु पर ईमान रखते हैं। I hope all of us are blessed with this word. Thank you.